دعائیں کریں. یہاں کے حکومت کے جو ذمہ داران ہیں, یہاں کے پرائم منسٹر ہے, یہاں کے سی ایم ہے, سب کے لیے ہدایت دعا کریں, نام لے لے کر کریں. پھر آپ دیکھیں کہ جب اس طریقے سے آپ دعا کریں تو آپ کو وقت کم پڑے گا اور دعائیں باقی رہ جائیں. یہ تو چند چیزیں ہماری مانگنے کی عادت ہے, اس لیے ایسا لگتا ہے کہ اتنی دعا کیسے ہوگی. میں کہتا ہوں ایک ایک گھنٹہ کم پڑے گا آپ کو. کعبۃ اللہ کے دیدار پر دعا کرنے میں 1 گھنٹہ کم پڑے گا, مروہ کی دعا میں 1 گھنٹہ کم پڑے گا, ملتزم کی دعا میں 1 گھنٹہ کم پڑے گا. تو کم سے کم میں اتنا کہتا ہوں کہ 1 گھنٹہ تو ان جگہوں پر دعائیں کرتے چلے. جب یہ آپ کی صحیح پوری ہو گئی اور مروہ پر آپ نے دعا کر لی, اب آخری کام آپ کا عمرے کا باقی رہے گا کہ جا کر آپ کو حلق کرانا. وہاں سے آپ باہر نکلیں گے, چاہے اسی وقت نکلیں یا حرم میں 2-4 گھنٹے گزارے, نماز پڑھے, تلاوت کرے, کچھ بھی کرے. جب تک حلق نہیں کرایا تب تک احرام کی پابندیاں باقی ہیں. اور جب آپ کا ارادہ ہو کہ اب چلو واپس چلتے ہیں, اب ہوٹل جانا ہے, تو اس وقت باہر جا کر حجام کی بہت زیادہ دکانیں ہیں, وہاں جا کر مرد حضرات حلق کرا لیں تو وہاں ان کا عمرہ پورا ہو جائے. اور عورتیں چاہیں تو وہیں پر مسجد کے باہر جا کر اپنے بال کٹا دیں. وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہیں مروہ پر کھڑے کھڑے مسجد کے اندر ہی وہاں پر بال کاٹنا شروع کر دیں. تو یہ مسجد کے بے احترامی ہے, یہ مسجد کی بے ادبی ہے. اس کا خیال کریں, مسجد کے باہر جا کر کریں. بال کاٹنا ہے کمرے میں آ کر کاٹیں, مسجد کے باہر جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو, اس لیے کہ عورتوں کے بال بھی زدہ رہے, تو اس طریقے سے کوئی نہ دیکھتا ہو پردے کا خیال کر کے مسجد کے باہر کاٹیں. اور مرد حضرات جو ہے یہ چاہے حجام کے پاس حلق کرائے, چاہے کمرے میں آ کر خود سے حلق کرے, خود سے اپنے استرے سے لے کر حلق کرے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں, ایک دوسرے ساتھیوں کا حلق کرے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں, لیکن حلق کرا لے یہ بہتر ہے. وہاں جا کر 5-10 ریال ہوتے ہیں, اس میں حلق کرا لیا, آپ کا عمرہ پورا ہو گیا اور آپ کے 4 کام پورے ہو گئے. احرام کی پابندیاں پوری ہو گئی. احرام کی پابندیاں پوری ہوئی ہے, شرعی پابندیاں ختم نہیں ہوئی. جو شریعت کی پابندی پہلے سے آپ پر ہے, پردہ اس سفر میں جو ہوٹلوں میں آپ رہیں گے, ہوٹلوں میں 2 لوگوں کو, 4, 7, 6 لوگوں کو, 8 لوگوں کو ساتھ میں رکھا جاتا ہے, تو اس میں پردے کا خاص اہتمام کریں. آپ کے ساتھ رہنے والے آپ کے محرم نہیں ہیں تو ان کے ساتھ پردے کا خاص اہتمام کرنا. ہو سکے بیچ میں چادر ڈال دیں, تو لوگ عورتیں اس طرف سوئیں, مرد اس طرف سوئیں. پردے کا خاص خیال کریں. جب آپ کمرے میں جائیں اپنے تو نوک کیے بغیر نہ جائیں, اس لیے کہ آپ کے پارٹنر ایسے بھی اندر موجود ہیں جو آپ کے محرم نہیں ہیں اور ان کے ساتھ آپ کا پردہ ہے. جب وہ لوگ ایسی چیزوں میں مشغول ہیں تو اس لیے دروازہ نوک کیے بغیر نہ جائیں, وہاں پر اپنے ساتھیوں کا خیال کریں. یہ سب شرعی پابندیاں ہیں. اپنی زبان کی, اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں, خاص کر کے حرم میں بھی, مکہ کے حرم میں وہاں عورتیں بھی طواف کے لیے آتی ہے, اور مسجد میں نماز کے لیے بھی عورتیں, جگہ الگ بنی ہوئی ہے, لیکن کبھی کبھی طواف کی وجہ سے عورتیں بھی مردوں کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہے. تو نگاہوں کی خاص حفاظت کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہے جس کا آپ کو وہاں حرم میں, مکہ کے حرم میں خیال کرنا ہے. جیسے نماز کی بات کہی گئی, آپ جب بھی کسی فرض نماز کی نیت باندھیں, کسی بھی فرض نماز کی امام کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نیت باندھ رہے ہیں, تو نیت باندھنے سے پہلے خیال کر لیں کہ آپ کے آگے کی طرف کوئی عورت کھڑی ہے, آپ کے دائیں طرف بالکل لگ کر کوئی عورت کھڑی ہے, آپ کے بائیں طرف کوئی عورت کھڑی ہے, آپ کے آگے یا دائیں طرف بالکل لگ کر یا بائیں طرف لگ کر کوئی عورت کھڑی ہوگی, آپ کی نماز نہیں ہوگی. اس کی ہوگی نہیں ہوگی وہ خود جانے, لیکن آپ کو اس طریقے سے نیت باندھنے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میرے دائیں, آگے اور بائیں کوئی عورت کھڑی ہوئی نہ ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طواف کرتے کرتے جماعت کھڑی ہو جاتی ہے, تو لوگ جسے جہاں جگہ مل گئی وہاں نماز شروع کر دیتے ہیں. تو آپ نے نماز پڑھی, حرم کی نماز پڑھی, لیکن نماز ہوئی ہی نہیں, کیونکہ عورت کھڑی ہو گئی تھی آگے. عورتوں کی صفوں کی جگہ پیچھے ہوتی ہے. جو ہماری ماں بہنیں یہاں موجود ہیں وہ تو اس بات کا پورا خیال کریں کہ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے, اس سے پہلے طواف پورا کر کے یا ادھورا چھوڑ کر عورتوں کی جو نماز پڑھنے کی جگہ وہاں جا کر نماز پڑھیں. ہماری یہ عورتیں مردوں کے بیچ میں ساتھ میں صفوں میں کھڑی نہ ہو جائیں, ورنہ ان کی نماز کا بھی مسئلہ رہے. تو اس لیے ایک اس بات کا خیال کریں. دوسرا, نمازی کے آگے سے گزرنا. نمازی کے آگے سے گزرنے میں حرم میں کوئی مسئلہ نہیں. حرم میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دے رکھی ہے.
नमाजी के आगे से आप गुजर जाएंगे तो भी गुनाह नहीं होगा, जैसा यहाँ की मस्जिदों में होता है, यहाँ की नमाज में होता है। हरम में इसलिए कि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और तवाफ करते करते सबको नमाज भी पढ़ना, इधर उधर जाना है, तो हरम में इजाज़त है इसकी कि आप नमाजी के आगे से गुजर जाएंगे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जब तक हो सके इतना बचना चाहिए कि गुजर कर न जाए, उसको पीछे से होकर जाए, लेकिन गुजर गए तो कोई गुनाह नहीं होगा। तीसरी बात, कोविड के बाद जो हरम की सिचुएशन हो गई, कोविड के बाद खास तौर से जिन दिनों में रश होता है वहाँ पर उम्रा करने वालों का, हज करने वालों का, तो उन दिनों में नीचे फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पर तवाफ करने के लिए जाने नहीं देते। सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने देते हैं जिनके एहराम की चादर है, यानी एहराम की हालत में है, ऐसे लोगों को ग्राउंड फ्लोर पर एंट्री मिलती है। बाकी लोगों को सबको पुलिस वाले ऊपर भेज देते हैं, ऊपर जाओ ऊपर जाओ। वो इसलिए होता है लोगों को वहाँ पर जो एहराम की हालत में आए, जिनको वाजिब तवाफ करना है एहराम की हालत का, उन लोगों के लिए हरम खाली रखने के लिए उनको आसानी रहे, इसलिए पुलिस वालों ने हुकूमत ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि नफली तवाफ करने वाले, नमाज पढ़ने वाले ऊपर जाए और सिर्फ वाजिब तवाफ करने वाले नीचे आए। तो उसमें जब कोविड के बाद ऐसी सिचुएशन आई तो हमारे यहाँ के जो हाजी जाते हैं वो लोग ऐसा करते हैं कि नीचे ज़्यादा तवाफ होते हैं, नीचे कम चक्कर पड़ता है, ऊपर लंबा चक्कर पड़ता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि वो एहराम की हालत में नहीं होते, फिर भी झूठ मूठ चादर पहन कर चले जाते हैं कि नीचे तवाफ करने में। तो ये तो धोखा है, ये धोखा है, ये जायज़ नहीं है। इसमें आप ज़्यादा तवाफ कर लोगे तो भी सवाब नहीं मिलेगा। आप एहराम की हालत में हैं तो बेशक आप जाए, आपको नीचे तवाफ करने हैं तो आप एहराम की हालत में हो तो नीचे तवाफ कीजिए, आप एहराम की हालत में नहीं है तो जैसा वहाँ पर कानून बना हुआ ऊपर चले जाए। ये अगर हो तो, क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारे लोगों का ये सवाल आया कि वहाँ ऐसी सिचुएशन है तो कम रश होता है तो ये सबको जाने देते हैं नीचे, तो कम रश है नीचे जाने दे तो नीचे तवाफ कर ले आप नफली तवाफ, ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ करें आप। एक सफ़र में कम से कम 60 तवाफ कर ही लें, 7 चक्कर का एक तवाफ होता है, 7 चक्कर 2 रकात का, तो 60 तवाफ एक सफ़र में कम से कम इतना तो कर ही लेना है। फिर मक्का के इन दिनों में जब मक्कातुल मुकर्रमा है तो सारे नमाज़ें हरम में पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा बैतुल्लाह के करीब रहना है, बाज़ारों के चक्कर में, घूमने फिरने के चक्कर में नहीं रहना। फिर जब आपका मदीना शरीफ जाने का मौका तो ये चलो आज मदीना शरीफ जाना है और मदीना शरीफ में कुछ दिन गुजारना है, तो ये भी बड़ी मुक़द्दस जगह है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार, आपके रोज़े अक़दस का दीदार वहाँ होना है। तो इसलिए ज़ियारत मदीना मुनव्वरा उसके लिए जब जाना है तो उसमें भी आप ऐसी तरतीब बनाएं कि आप जो अच्छा लिबास आपके पास हो वो मदीने के लिए हो, सबसे अच्छा जो लिबास हो वो मदीने के लिए रहे। चाहे तो आप यहाँ से निकलते हुए बस में बैठने से पहले पहन लें नहाकर, या वहाँ पहुँचकर होटल में पहुँचकर बिल्कुल अच्छे तरीके से नहाकर फ्रेश हो जाए और अच्छा लिबास मदीने के लिए रहे। हो सके तो अपने सर पर अमामा और खुशबू और सुन्नतों का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करना। मदीना मुनव्वरा की ज़्यादा से ज़्यादा बरकत लेनी है तो सुन्नतों का और दुरूद शरीफ का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करना। मक्के से मदीना जाते हुए पूरे सफ़र पर दुरूद शरीफ हो सके तो नाज शरीफ पढ़े ताकि मोहब्बतें और उसका जज्बा और ज़्यादा बढ़ जाए। टूर का ऑपरेटर हो सके तो वो भी नाज शरीफ का एहतमाम करे। बस के अंदर माइक भी होता है, मोबाइल से नात बजवाए या किसी से पढ़वाए, लाइव नात पढ़वाए, ताकि नात पढ़ते हुए दुरूद शरीफ पढ़ते हुए हुजूर की मोहब्बतों में मदीना शरीफ पहुँचना। वहाँ पर पहुँचकर भी जल्दी ना करें जैसा कि मक्का में नहीं किया था। वहाँ पर भी होटल में पहुँचकर रेस्ट ले लें, फ्रेश हो जाए, अच्छे तरीके से लिबास पहन लें, अमामा पहन लें, अमामा नहीं है तो कम से कम टोपी पहन लें और मिसवाक कर लें, खुशबू लगा लें, अच्छे से अच्छे खुशबू। खास करके हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊद पसंद था तो ऊद लगा कर जाए। ऊद अगर आपके मिजाज को सेट नहीं होता तो कोई भी खुशबू लगा लें और वो खुशबू लगाकर मस्जिद नबवी में ज़ियारत रोज़ा रसूल के लिए जाना है तो इसलिए हम चलें। मस्जिद नबवी में दाखिल होते हुए भी सुन्नत तरीक़े का ख़ास ख्याल रखते हुए दाखिल हो, जैसा कि हमने मक्कातुल मुकर्रमा में किया था, दाएं पैर से दाखिल होना और एतिकाफ़ की नियत करना, दुआएं पढ़ते हुए दाखिल होना। और मस्जिद में दाखिल होकर तो तहियतुल मस्जिद की 2 रकात नमाज़ पढ़ें। और दाखिल होने में भी बेहतर है
کہ باب جبرائیل سے مسجد میں داخل ہو، باب جبرائیل سے نہیں ملا تو جس باب سے بھی ملے اس باب سے داخل ہو جائے اور 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے اور وہاں بیٹھ کر شکریہ کی دعا مانگے کہ اللہ تو نے مجھے یہاں پہنچا دیا، تیرا شکریہ ہے، اب میں رسول اللہ کے روزے کی زیارت کرنے جاتا ہوں اور رسول اللہ کے روزے کی زیارت کے لیے جاتا ہوں۔ زیارت کرنے سے پہلے موقع مل جائے تو پہلے نہ ملے تو بعد میں ریاض الجنت نامی ایک جگہ ہے مسجد نبوی میں، روزہ رسول کے پاس میں ہی، آپ کے منبر اور آپ کے روزے کے بیچ کی جو جگہ ہے اس کو ریاض الجنت کہتے ہیں، یعنی یہ جنت کا ٹکڑا ہے، ابھی یہ دنیا میں ہے، قیامت کے بعد یہ جنت میں اٹھا دیا جائے۔ اس ٹکڑے میں جو پہنچ گیا وہ گویا کہ جنت میں پہنچ، وہاں جا کر 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھنے کا بڑے فضیلتیں آئی حدیث میں، فرمایا کہ جو آدمی یہاں ریاض الجنت میں 4 رکعت نماز پڑھتا ہے وہ گویا کہ بطنان عرش میں نماز پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب نماز پڑھ رہا ہے، اتنی مقدس جگہ ہے، تو ہو سکے تو پہلے موقع ملے تو پہلے نہ ملے تو بعد میں، لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال کرنا ہے کہ لوگوں کو تکلیف دے کر نہیں پہنچے، وہاں رش ہوتا ہے، سب چاہتے ہیں کہ یہ برکت ہمیں ملے، تو باری باری سے جب موقع آئے تو اس وقت پہنچے۔ مسجد نبوی میں بہت زیادہ جس بات کا خیال کرنا ہے وہ ہے بے ادبی بالکل نہیں ہونی چاہیے، زبان سے اپنا آواز اونچا نہیں ہونا چاہیے، اپنی کوئی حرکت بے ادبی والی نہیں ہونی چاہیے، بے ادبی کی کوئی حرکت ہوئی، اپنی آواز بلند ہو گئی تو اپنی سب نیکیاں برباد۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر بھی لکھا ہوا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ یہاں پر اپنی آوازوں کو پست رکھے تو کوئی بے ادبی نہ کرے، یہاں پر بے ادبی ہوئی، آوازیں بلند ہو گئی تو پھر آپ کا معاملہ بگڑ گیا۔ مسجد نبوی میں جب بھی موقع ملے بیٹھ کر درود شریف پڑھے، تلاوت کرے، دعائیں مانگے اور نعتیں پڑھے، لیکن سب اطمینان کے ساتھ، آوازیں بالکل نہیں ہونی چاہیے، آس پاس بیٹھے ہوئے عبادت کرنے والے لوگوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ پھر جب آپ روزہ رسول کی زیارت کے لیے جائیں تو اس میں مستحب اور سنت یہ ہے کہ باب السلام سے داخل ہونے کا موقع مل جائے تو اس طرف سے داخل ہو، نہ ہو تو جس باب سے داخل ہونے کا موقع ملے اس باب سے آپ روزہ رسول کی زیارت کے لیے جائیں۔ روزہ رسول کی زیارت میں جائے تو نیچے نگاہیں کرتے ہوئے درود شریف پڑھتے ہوئے جانا ہے، اور جہاں پر روزہ رسول یعنی وہ جس جالی کے پیچھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر ہے اور آپ اس میں حیات ہے اور آپ وہاں پر آنے والے لوگوں کو پہچان رہے ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں، ان کے سلام کے جواب دے رہے ہیں، وہ عظیم جگہ، پوری کائنات کی سب سے مقدس جگہ وہاں پہنچنا ہے، تو اس لیے پورے دل میں ادب اور پورے جسم پر ادب کا اظہار کرتے ہوئے نیچے نگاہیں کرتے ہوئے چلتے ہوئے جائے، اور جب جالی کے سامنے پہنچے وہاں پر ایک گول تختی لگائی ہوئی ہے، محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے کہ یعنی یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پڑتا ہے، آپ قبر اطہر میں جیسے لیٹے ہوئے ہیں اس طریقے سے آپ کا چہرہ جس طرف پڑتا ہے وہ وہاں پر ایک گول تختی لگائی ہوئی ہے، اس کو مواجہہ شریف کہتے ہیں، وہاں پر جا کر کھڑے ہو ادب کے ساتھ اور وہاں پر سلام پیش کرو، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا خیر خلق اللہ۔ اس کے علاوہ بھی جو سلام آتے ہو تو وہاں پر زیادہ ٹھہرنے کا اگر موقع دے آپ کو، وہاں سے کوئی ہٹا نہ دے تو پھر آپ کھڑے رہ کر جتنے سلام پڑھنا چاہے پڑھ، اطمینان کے ساتھ پڑھ، ورنہ زیادہ نہ کھڑے رہنے دے تو مختصر ہی السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، کتنا بھی آ جائے کتنا بھی پڑھ، پھر وہاں کھڑے رہ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرے، اپنے لیے دعا کی، اپنے لیے سفارش کی، اپنے گھر والوں کے لیے دعا، اپنے گھر والوں کے لیے سفارش کی، پوری امت کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بتلائی جاتی ہے کہ وہاں کھڑے رہ کر کم سے کم ایک مرتبہ دوسرا جو کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، یہاں ہم پڑھتے ہیں ان محمد رسول اللہ، وہاں کھڑے رہ کر اشہد انک محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس طریقے سے وہاں کلمہ پڑھ لیں اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں، دعا کی، اور پھر ادب کے ساتھ وہاں سے چلے گئے۔ وہاں کھڑے رہ کر زور زور سے چلانا، جالی کو ہاتھ لگانا، وہاں بوسے دینے جانا، یہ سب بے ادبی ہے، اور اس بے ادبی سے وہاں پولیس والے بھی روکتے ہیں اور شریعت میں بھی روکا گیا ہے، تو اس لیے وہاں پر کوئی بے ادبی کا کام نہ کرے، کھڑے رہ کر اطمینان کے ساتھ سلام پیش کریں اور اس خیال کے ساتھ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھ رہے، مجھے پہچان بھی رہے ہیں اور میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں، اور آپ دیتے بھی ہیں وہاں، تو اس لیے اس خیال کے ساتھ جیسے حضور کے سامنے ہم کیسے کھڑے ہو، اس ادب کے ساتھ عظمت کے ساتھ کھڑے ہو کر سلام پیش کریں، جب آپ اوپر سلام پیش کر کے وہاں سے نکلے،
जिन जिन लोगों ने सलाम आपको कहने के लिए कहा, मेरी तरफ से भी सलाम पहुँचाना। जब अपना सलाम पूरा हो जाए उसके बाद कह दे कि रसूलुल्लाह फलाने की तरफ से भी सलाम, या सबके नाम याद ना हो तो जिन जिन लोगों ने मुझे सलाम पहुँचाने के लिए कहा था या रसूलुल्लाह सबकी तरफ से आपको सलाम पहुँचे, इस तरीके से कहकर आगे हो जाए। तो वहाँ पर अबू बकर लिखा हुआ है 2-3 कदम के बाद। यहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र है और उनका चेहरा उस तरफ बनता है, वहाँ उनको सलाम पेश करें, अस्सलामु अलैका या अबा बकर, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। जिस अल्फाज में भी आता हो, ना आता हो तो अपनी ज़बान में कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप पर सलामती, इस तरीके से सलाम पेश करें। उसके एक कदम के बाद हज़रत उमर, इनकी कब्र मुबारक है, तो उनको सलाम पेश करें और फिर वहाँ से बाहर निकल जाए, फिर मस्जिद में रुके। मदीना शरीफ के क़याम में भी इस बात का पूरा ख्याल करें कि सारी नमाज़ें मस्जिद नबवी में, यहाँ एक नमाज़ पढ़ने का सवाब 50,000 नमाज के बराबर है। एक रिवायत के मुताबिक 1000 रकात के बराबर है। ज़्यादा सब की सब नमाज़ें हमारी मस्जिद नबवी का होनी चाहिए। बाज़ार में आप गए कि किसी जगह पर भी गए, होटल में गए, नमाज का वक्त आपका मस्जिद नबवी में होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद नबवी में गुजार कर दुरूद शरीफ पढ़ने में, दुआ मांगने में, तिलावत में, इबादत में रहना है। मदीने में आम तौर से हमारे हाजी घूमने चले जाते हैं और घूम कर वहाँ की इबादतें जो मक्का से हासिल करके लाए थे सब वहाँ पर खो देते हैं। जाए आप कुछ खरीदना है तो जाए ज़रूर। मदीना की तबरुकात, वहाँ की खजूरें, वहाँ की चीज़ें आप घर वालों के लिए लाना चाहते हैं तो बेशक लाइए, लेकिन उसकी ख़रीदारी में जो आपने हासिल किया था उसको बर्बाद करें। दूसरी एक अहम बात कि मदीना शरीफ की किसी भी चीज़ को और मक्का की भी किसी भी चीज़ को आप बुरा न करें। आपको जो चीज़ पसंद आए तो ठीक है, ना आती हो तो उसको बुरा ना करें। ये ना कहें कि ये चीज़ें मदीने में तो कैसी बेकार की चीज़ें मिलती है, इससे अच्छा तो हमारे यहाँ मिलता है, इससे अच्छा तो फलाने के यहाँ मिलता है। ऐसा बेअदबी का कोई लफ्ज़ पूरे मदीना के लिए, मदीना की चीज़ों के लिए, मदीना के लोगों के लिए, मदीना की हवाओं के लिए और मदीना की किसी भी चीज़ के लिए बुराई का और बेअदबी का कोई लफ्ज़ ज़बान से नहीं निकलना चाहिए। अगर कोई गुस्ताखी और बेअदबी का लफ्ज़ हो गया तो किया कराया सब बर्बाद हो जाएगा। इस बात का ख्याल करते हुए जितने दिन मदीने में आपको ठहरने का मौका मिले उतने दिन ठहरे और जब वापस हो वापसी का सलाम भी इस तरीके से पेश करते चले जाए। रोज़ाना हर नमाज के वक्त मौका मिले तो सलाम पेश करने जाए, तो कम से कम रोज़ाना 1-2 मरतबा सलाम पेश करने जाए और बाकी इबादत मस्जिद के अंदर करते रहे। ये मदीने मुनव्वरा का क़याम है। और जब यहाँ से वापसी हो दुआएं मांगते हुए अल्लाह इस मरतबा तुमने बुलाया, वापस भी हमें बार बार हरमैन शरीफैन की हाज़िरी दे, इस तरीके की दुआ करते हुए आदाब के साथ और अज़मत बरकरार रखते हुए मैं वापस आता है। ये मुख्तसर तरीक़ा दोनों हरमैन की हाज़िरी का था, वरना इस पर तो लंबी लंबी किताबें लिखी गई है तो 1-1.5 घंटे में पूरा नहीं हो सकता। अब आपके मन में किसी को कोई सवाल हो तो मुख्तसर थोड़ा सा किसी का कोई सवाल हो तो उसका जवाब दे दिया जाए। आपके अंदर जो अच्छा सवाल किया आपके सामने। जो उम्रे का तवाफ़ होता है और जो हज का तवाफ़ होता है उसमें 2 सुन्नतें और जो कहनी रह गए मुझसे, 2 सुन्नतें मर्दों के लिए उम्रे के तवाफ़ और हज के तवाफ़ में सिर्फ मर्दों के लिए, और वो 2 सुन्नतें हैं। एक इस्तिबा कहते हैं, ये जो चद्दर है, ये जो चद्दर हमने इस तरीके से ओढ़ी हुई थी उसमें दाना कंधा हमारा खोल दे और इस तरीके से डाल दे। उम्रे के तवाफ़ के 7 चक्कर में ये हमारी चद्दर इस तरीके से रखना सुन्नत, इस तरीके से रखेंगे तो सुन्नत अदायगी का सवाब मिलेगा। अगर किसी से भूल हो जाए और इसी तरीके से तवाफ़ कर ले तो तवाफ़ तो हो जाएगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, तवाफ़ के 7 चक्कर कौन सा तवाफ़? जो उम्रे का तवाफ़ है या हज का तवाफ़, मर्दों के लिए सिर्फ ये दाना कंधा अपना खोल कर रखना और चद्दर इस तरीके से डालना और इस तरीके से तवाफ़ करना, ये सुन्नत है। एक सुन्नत ये हो गई। और दूसरी सुन्नत वो भी सिर्फ मर्दों के लिए है और वो भी सिर्फ उसी तवाफ़ में है जिसमें हज या उम्रे का तवाफ़ है। उसमें पहले 3 चक्कर में रमल करना सुन्नत है। रमल कहते हैं थोड़ा सा अकड़ कर चलना, यानी ये खपे जो है उसको इस तरीके से हिलाकर अकड़ कर जैसे चलते हैं छोटे छोटे कदमों के साथ, ये कंधे हिलाकर
पहले 3 चक्कर में सिर्फ, और वो भी सिर्फ मर्दों के लिए, और सिर्फ उसी तवाफ में जो हज या उम्रे का है। नॉर्मल जो तवाफ आप नफली तवाफ करेंगे उसमें ये दोनों चीज़ें नहीं, ठीक है। और कोई सवाल किसी का हो तो बता दो। और किसी का सवाल हो खुशबू बगैर जो साबुन होता है, खुशबू के बगैर ऐसा साबुन एहराम की हालत में इस्तेमाल कर सकते हैं। एहराम के बगैर तो हर चीज़ से आप एहराम निकाल सकते हैं, एहराम को निकाल के ना सकते हैं। हम एहराम के चद्दर उतार कर जब नहाना हालत एहराम आती है, चद्दर उतारी है तो उसमें आप साबुन इस्तेमाल ना करें। एहराम उतार सकते हैं, बदल सकते हैं, धो सकते हैं। लगानी है तो लगा सकते हैं, बीन लगानी है, सेफ्टी बीन होती है, पत्थर होता है, तो इसलिए सड़क न जाए, लगाना चाहे लगा सकते हैं। अंदर रोड़े डालना चाहे तो डाल सकते हैं। हाँ, अपने मरहूमीन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए उम्रा करना चाहे कर सकते हैं, तवाफ करना चाहे कर सकते हैं। आपका ये उम्रा पूरा हो गया, दूसरी मरतबा उम्रा करना आपको किसी के लिए या अपने लिए, तो उसके लिए मस्जिद आयशा है, वहाँ जाए और वहाँ से वापस एहराम किया था उसी तरीके के एहराम करना, ये उम्रा हो जाएगा। मस्जिद आयशा सबसे करीब जगह है, दूसरी जेलवाना है। जेलवाना जगह है, जेलवाना जो 23-24 किलोमीटर पड़ता है, और सबसे करीब जगह है मस्जिद आयशा जो 6.5 किलोमीटर उससे भी ज़्यादा लंबी जगह है। वहाँ से जाकर जाए और एहराम पहनकर उम्रा कर सकते किसी के लिए भी तवाफ करना है आपको तो नफली तवाफ आप करें, 7 चक्कर लगाए, 2 रकात नमाज पढ़े और उसके बाद कह दें कि अल्लाह ये तवाफ इसका सवाब फलाने को दे दो, उसका हो को जिंदा हो, जिसके लिए भी करना। नफली तवाफ में तो चद्दर भी नहीं होती, अपने ये कपड़े होते हैं और चद्दर पहनी भी हो तब भी उसमें ये कंधा खोलना और रमल करना उसमें नहीं, वो सिर्फ हज और उम्रे के तवाफ में है। के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन नफली तवाफ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। चक्कर के बीच में भी आप दुआ करना चाहे कर सकते માફ કરશે તો આપણે ખાસ ખ્યાલ રાખવો પડે खुशबू लगी हुई होगी, किसी के बाल टूट जाए या कभी इस तरीके की कोई बात आ जाए तो उसको सिर्फ सदका देना। बाल खुद से काटे नहीं, लेकिन भूल से टूट गए, वुज़ू करते हुए आमतौर से औरतों को मसाज करते हुए बाल टूट जाते हैं, मर्दों को दाढ़ी के बाल टूट जाते हैं, तो कभी जाने अनजाने में बाल टूट जाते हैं,
कभी ऐसा होता है कि भूल गए थे, उर्दू करके पूछने की आदत थी, वो पूछ के फिर याद आया। ऐसे काम हो जाए जो एहराम की हालत में नहीं करने थे, तो ऐसे छोटी छोटी गलती में सदका देना होता है। उम्रा पूरा हो जाए उसके बाद 5-10 रियाल का सदका दे दे तो ये सब बालगान इन सब चीज़ों का हो जाए। लेकिन बड़ी गलती हो गई है तो क्या गलती हुई है और उसकी क्या सज़ा है वो किसी उलमा किराम से पूछ ले तो वो आसान रहे। वहाँ से कुछ उलमा किराम के कॉन्टेक्ट नंबर ले जाए और उलमा किराम साथ में है तो समय से सुना दें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने सामने सारी खुलकर बातें पेश कर दी है। और दूसरी जो ज़रूरी बात है कि यहाँ डॉक्यूमेंट एक आपको जो दिया जाएगा उसमें आप 2 पासपोर्ट फ़ोटो साथ में ले लेंगे और वैक्सीन सर्टिफिकेट वो 2 कॉपी करा कर साथ में रख लेंगे। आज की जो डॉक्यूमेंट दिए जा रहे तो उसमें रख ले ताकि फिर जाते वक्त फूल वगैरह न कुछ हो गया। और दूसरी बात कि जो लगेज बैग है और हैंड बैग उसका वज़न कितना ले जाना है। लगेज बैग में हमें 30 kg यानी 30 किलो और हैंड बैग का 7 किलो, उससे ज़्यादा होगा तो वहाँ फिर फाइन होगा। इसलिए कम से कम ये कोशिश करें कि यहाँ से जाते वक्त वज़न कम हो, क्योंकि वहाँ से आते वक्त हम खरीदारी वगैरह करेंगे तो वज़न बढ़ जाएगा। इसलिए लगेज का 30 किलो और हैंड बैग का 7 किलो। और जो मुफ्ती साहब ने कहा कि औरतों को उम्रा करके उनको बाल वगैरह काटने तो सब अपनी ज़रूरी चीज़ें साथ में ले लेंगे, कैंची वगैरह। तो वो चीज़ें जो लोहे की है जिस तरह के नाखून कटर है वगैरह वो सब अपने लगेज का जो बैग है उसमें पैक करें, हैंड बैग में पैक ना करें, क्योंकि वहाँ पर चेक होता है तो वहाँ पर निकाल लेते हैं अक्सर मरतबा। इसलिए वो लगेज में पैक करके लगेज में ही दे दे रहे। और लगेज का जो बैग है उस पर अगर अपना नाम लिखवा कर स्टिकर लगवाना है तो लगा ले, या तो सिर्फ जो लगेज बैग वगैरह दिया जाएगा उसमें जगह है, नाम लिख कर रखने की भी जगह है। और अगर ऐसा नहीं है तो किसी कंप्यूटर वाले के पास जैसे अरमान ग्राफिक्स है वहाँ भी अपना स्टिकर बनवा कर, नाम वाला स्टिकर बनवा कर लगा रहे तो भी लगवा सकते हैं उसमें, ताकि हमारे बैग पहचानने में सहूलत रहे। और अपने जो लगेज बैग है, हैंड बैग है, वो सबकी एक जैसी होगी। वहाँ पर कितने हाजी लोग आते हैं सबकी मिक्स हो जाएगी। तो उसमें ऐसा हो तो किसी लाल कलर है, ऑरेंज कलर है, कोई भी कलर की ऐसी पट्टी तो कपड़े का धागा वगैरह जो भी बांधना हो बांध ले, ताकि हम दूर से भी अपने बैग को पहचान ले। बस ये ज़रूरी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी सारी बातें तो मुफ्ती साहब ने बता दी है। और कलिमात तशक्कुर के लिए मौलाना मुबीन साहब आए। अपना 28 तारीख को जाने का है, इसलिए आमिरा मस्जिद से इंशाअल्लाह हम 10 बजे वहाँ से निकलेंगे। सुबह 10 बजे वहाँ से निकलेंगे, 9:30 बजे वहाँ पर ही दुआ हो जाएगी। अभी तो दुआ होगी वहाँ पर इंशाअल्लाह, मौलाना से वहाँ भी दुआ करवा लेंगे 9:30 बजे, 9:45 बजे। और इंशाअल्लाह हम 10 बजे सुबह निकल जाएंगे। और अहमदाबाद से हमारी 5:30 बजे फ्लाइट है, अहमदाबाद से बॉम्बे, बॉम्बे से जिद्दा। वहाँ टाइम से सब 9:30 बजे तक पहुँच जाए ताकि हमारा निकलना आसान हो जाए। 10 बजे सोसाइटी आमिना मस्जिद। तो पागलपुर वगैरह के जो साथी है वो अगर वहाँ से घर जाएंगे डायरेक्ट तो भी चलेगा, और अगर यहाँ आ जाए तो यहाँ, वरना वहाँ से डायरेक्ट घर जाओगे तो भी चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे इस प्रोग्राम को आए तकमील तक पहुँचाया। और फिर हमारे मुफ्ती अब्दुल अजीज़ साहब दामत बरकातहू और उनके साथ मुफ्ती आदिल साहब और मौलाना शोएब साहब दामत बरकातहू, ये हजरात अपना बड़ा लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक हमारी अदना सी दावत पर यहाँ तक पहुँचे हैं। इन हजरात का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और फिर हमारे थराद ईमन काउंसिल के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद बाबू बाटसन वाले वो भी यहाँ पहुँचे हैं। इन तमाम हजरात का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और स्टेज पर तशरीफ़ रखे जो मेहमान हैं इन तमाम हजरात का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और उम्रा में जाने वाले तमाम हाजियों, माँ बहनों और भाइयों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह इन तमाम की आमद को कबूल फरमावे, अल्लाह इन तमाम के सफ़र को आसान फरमावे। और खादिमुल उम्रा एंड हज की जानिब से
عمرہ میں جانے والے حاجیوں کو ایک لگیج بیگ دیا جاتا ہے بطور ہدیہ کے، ایک ڈاکیومنٹس بیگ دی جاتی ہے اور 7 دانہ تسبیح دی جاتی ہے، اور ہماری ماں و بہنوں کو نمازی رومالی دی جاتی ہے خادم العمرہ کی جانب سے۔ اللہ ہماری آمد کو قبول فرماوے اور ہمارے عمرہ کو بھی قبول فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور جو لگیج دے گے سب ساتھی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، ابھی بھی دے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ حافظ ہو گئے، حافظ صاحب وہ ہٹے گا نا، بند کر دو۔